Hello guys, welcome back to my channel. I am Simran. Please ignore the voice because there is construction work going on. And so on your recommendation, I tried this toner of Be Minimalist PHA 3% plus biotic toner. So guys, what I actually love about this product is that it has 3% gluconolactone, 3% PHA. सो द PHA का एडवांटेज ये है कि उनका मॉलिकुलर साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो हमारी स्किन के अंदर डीप नहीं जा सकते, हमारी स्किन के ऊपर रहते हैं एंड दे केमिकल एक्सफोलिएट आवर स्किन। एंड उनका दूसरा एडवांटेज ये होता है कि दे इवन एक्ट एज अ ह्यूमेक्टेंट, लाइक दे ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड दे कीप आवर स्किन हाइड्रेटेड, वेल मॉइस्चराइज। एंड थर्ड, इसका एडवांटेज ये है कि इट इवन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एजेंट, लाइक जो विटामिन सी करता है फ्री रेडिकल डैमेज को रिड्यूस करना, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स की तरह ये एक्ट करता है। सो दिस इज द थिंग दैट आई एक्चुअली लव अबाउट द PHA। एंड then they have so many ingredients which were like less than 3%, so I really don't want to go into those details of less than 3% ingredients, but then they have really nice ingredients like, but what I actually love most about those ingredients were the AquaXcel group. They have AquaXcel group, which is like the universal solution for the drying dehydrated skin, and I actually prefer products that have these AquaXcel group because they have actually helped me with my skin barrier function. And then they have salicylic acid, niacinamide, panthenol, and many other things which I will write down somewhere here. So guys, what I actually do not love about this product is that they have claimed that it has been formulated with probiotics and prebiotics. So probiotics are the good bacteria that wipe off the bad bacteria. एंड जैसे जब भी हमारा पेट ख़राब होता है तो डॉक्टर हमें दही और खिचड़ी बोलता है। तो दही में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, जो कि हमारे गट में जाता है और हमारे गट के जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उसको हटाता है और हमारे पेट को थोड़ा रिलीव मिलता है। सो ऐसे ही गाइस सेम प्रिंसिपल अप्लाइड होता है हमारी स्किन में। हमारी स्किन इज़ अ माइक्रोबायम ऑफ सो मैनी बैक्टीरियाज। देयर आर गुड बैक्टीरियाज, देयर आर बैड बैक्टीरियाज। गुड बैक्टीरियाज हमारी स्किन का बैरियर फंक्शन स्ट्रेंथन करते हैं और जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं वो हमें बार बार ट्रबल करते हैं। बट द गाइस थिंग विद प्रोबायोटिक इज दैट दे आर लाइक बैक्टीरिया. So I don't think so any skincare product, any cosmetic product can actually have a live bacteria into them because they all have preservatives are antimicrobial, antibacterial, antifungal. So they cannot have probiotics, although they have used this ferment lysate, lactococcus ferment lysate into their solution. So you will get all the benefit of the fermented ingredient into your skin if you use this, but it does not have probiotics into them because probiotics are actually the live bacteria. You need live bacteria to work as a probiotic. And then they have used prebiotics. Prebiotics are the food for those probiotics, like जितने भी फ्रूट एक्सट्रैक्ट होते हैं जैसे ऑरेंज, लेमन, कुकम्बर, ये सब एज अ प्रीबायोटिक एक्ट करते हैं बिकॉज वो एज अ फूड फॉर्म करते हैं और हमारे जो भी हमारी स्किन का माइक्रोबायम स्ट्रक्चर है, जो भी वहाँ पे बैक्टीरियाज रहते हैं उसका फ्लोरा एंड फौना और ज़्यादा क्या बोलते हैं और ज़्यादा अच्छा करते हैं. I think it has 3% PHA. That's it. That's a good thing. That should end the story. They should not lure more customer by saying it has probiotics into it. Like, this is misleading. Guys, now let's check its text. So guys, it has watery consistency, but it is not at all drying. It is very hydrating. Like winter में it was very good. एंड गाइस ये थोड़ा बहुत लगाने के बाद थोड़ा सा स्टिकी लगता है. तो जैसे अब समर्स आ रहे हैं तो मेरी स्किन भी ऑयली एंड एक्ने प्रोन है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाएगा अप्लाई करने में. फिर भी लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स ड्यूरिंग हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट ऑन माई ऑयली एक्ने प्रोन स्किन ड्यूरिंग समर सीजन. So guys, now let's check its pH. Its pH is around 3 to 5. Like, I don't have the number 4 coding, but they claim to have 4 to 5 pH. How I actually use this product is that जब ये नया नया आया था तो I was so excited to see gluconolactone into my skin care कि मैंने इसको रोज़ लगाना शुरू कर दिया. एंड 15 डेज़ तक मैंने इसको रोज़ लगाया एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. उसके बाद मुझे थोड़ी सी यहाँ पे इधर इधर इचिंग होना स्टार्ट हो गई रात को. तो फिर मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करना स्टॉप कर दिया थोड़े दिनों के लिए बिकॉज मेरा स्किन केयर रूटीन वही था. सिर्फ मैंने एक यही नया प्रोडक्ट था जो मैंने अपने स्किन केयर में इंट्रोड्यूस किया था. तो मुझे लगा कि शायद इसकी वजह से हो सकता है या शायद वेदर की चेंज होने की वजह से भी हो सकता है. आई वॉज नॉट श्योर. सो मैंने इसको एक बार यूज़ करना बंद कर दिया. एंड देन क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी इसका रिजल्ट देखने के लिए तो मैंने इसे ट्वाइस अ वीक स्टार्ट किया यूज़ करना. लाइक फॉर 2 weeks आई यूज़ इट ट्वाइस अ वीक एंड देन आफ्टर subsequent 2 weeks I use it on alternate days. And
again I take a gap of 15 days, because guys there is a very thin line between doing and overdoing it. एंड यू नो जब आप ओवरडू कर लेते हो तो आपका जो स्किन बैरियर है, आपका जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, जो अपर मोस्ट स्किन की जो लेयर है वो आप डिस्ट्रॉय कर देते हो। आपका स्किन का बैरियर जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो गाइस इसलिए बेटर है कि आप एक सेफ साइड में रहें। एंड इसका जो यूज़ है लाइक ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज कर सकते हैं। टोटल डिपेंड्स अपॉन योर स्किन सेंसिटिविटी। एंड आई रियली फील दैट यू नो कोई भी केमिकल एक्सफोलिएंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमें उसे एक बीच में एक गैप देना चाहिए। लाइक 1 महीना यूज़ करो, उसके बाद 15 दिन का गैप दो, उसके बाद वापस आप उसको यूज़ करना स्टार्ट करो। बिकॉज I don't know, I feel comfortable that way and my skin loves it that way. So guys, I really think that it's a good product because इंडिया में as such कोई PHA टोनर अभी तक है नहीं एंड इतना जेंटल और सेंसिटिव स्किन को सूट करने वाला PHA टोनर, दैट टू एट जस्ट ₹300 समथिंग। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि इतना सस्ता है। तो आई रियली थिंक दैट इट्स अ you should try this. Yeah, that's it guys. I hope you like this video, you enjoy my channel, and don't forget to click like and subscribe. Okay, bye.